Hello everyone. Today I, Dr. Isha Yadav, is going to take up the another topic of pharmacognosy, that is classification of drugs. Classification of drugs. It's been mentioned classification of drugs obtained from natural sources. That means हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. क्लासीफाई मीन्स ग्रुपिंग करना. कैसे आप ड्रग्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी ड्रग्स जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलेंगे. सो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द ड्रग्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर बीन क्लासिफाइड विच आर बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज से जो हमें ड्रग्स मिल रहे हैं उन्हें अलग अलग वेज में आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट विल बी आर अनदर टॉपिक. सो इन दिस टॉपिक द ड्रग्स आर क्लासिफाइड बाय वेरियस वे. बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी alphabetical classification is there, morphological classification is there, taxonomical classification, pharmacological classification, chemical classification and chemotaxonomical classification. As the name itself suggests, alphabetical, morphological, taxonomical, pharmacological, chemical classification and the chemotaxonomical classification. So further we'll be explaining one by one each and every classification. So first we'll be starting up with alphabetical classification. As the name suggests, alphabetical classification. Alphabetical means related to alphabets. Alphabets means A to Z जो alphabets हैं उनके बेसिस पे अगर हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं, इफ़ वी आर क्लासीफाइंग द ड्रग, और अगर हम ड्रग्स को ग्रुप या कैटेगरी में डिवाइड करें किसके बेसिस पे, उनके अल्फ़ाबेट के बेसिस पे. लाइक आपने देखा होगा जो बुक्स होते हैं या रेफरेंस बुक हो गए, जिन भी बुक्स में आप देखेंगे, डिक्शनरी भी अगर आप ले लीजिए तो अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे ही सारी चीज़ें लिखी होती है. ए विल बी देयर, देन बी, देन सी, देन डी एंड ई etc. So if the drugs are grouped or classified on the basis of alphabetical order, then it is known as the alphabetical classification. Majorly this has been done in the various pharmacopoeias. The pharmacopoeias are the books of the pharmacognosy and the reference books वगैरह जो है उनमें यूज होता है. Example of some of the pharmacopoeias are like Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia, European pharmacopoeia, United States, herbal pharmacopoeia, etc. Number of examples are there. So if the drugs are being classified on the basis of alphabet, अगर alphabet order पे या alphabetical basis में अगर हम drugs को classify करते हैं, that will be known as alphabetical classification. For example, you can see this like it's been written acacia, benzoin, cinchona, datura, ergot, phenyl. Till Z it has been mentioned. That means कि आप A से start कर रहे हैं, acacia, B for benzoin, C cinchona, D datura, E ergot and phenyl. That means हम एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे जो कि आपकी वेरियस बुक्स एक्सेट्रा में ज़्यादातर किया जाता है. दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन. After this, moving towards the another way of classification, that is morphological classification. Morphological classification means if we are classifying the drugs on the basis of part from which they are obtained. That means किस part से drug obtain हो रही है, अगर हम उस basis पे drug को classify करते हैं तो वो आएगा आपके morphological classification में. For an example, drug मुझे leaf से मिल रही है, स्टेम से मिलेगी, बाक से मिलेगी, राइजोम से मिलेगी, रूट से मिलेगी, जिस भी फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया एक्सेट्रा, जिस भी पार्ट से मिलेगी. सो द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द ड्रग प्लांट इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो अगर हम ड्रग्स किसके बेसिस पे क्लासीफाई करें, फ्रॉम द पार्ट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Morphological classification is further classified into two categories. दो categories में divide किया गया है. One is organized, another one is unorganized. ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है एक प्रॉपर वे. अगर मैं ऑर्गेनाइज का लिटरली ट्रांसलेशन भी कहूँ तो अ प्रॉपर वे इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. ऑर्गेनाइज का मतलब हुआ कि अगर मुझे पर्टिकुलर पार्ट पता है कि लाइक लीफ है, रूट है, राइजोम है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज. अनऑर्गेनाइज्ड क्या होगा, जिसमें मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट डिफाइन नहीं है कि ड्रग हमें किस पर्टिकुलर पार्ट से मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल रेजिन्स आर देयर, गम्स वगैरह, आपने बबूल एक्सेट्रा, इनमें जो नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल्स है कि बबूल का हो गया या आपका केशर जिनको आप बोलते हैं, आपने रेजिन हो गया, एसोफोटीरिया, हींग जिसको बोलते हैं, ये भी आपके क्या है, अ फॉर्म ऑफ अ ड्रग है आपके. ये क्या, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं डिफाइन है. बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अ डीप इंसिशन ऑन अ प्लांट इज बीन डन, डीप इंसाइज करते हैं, उसको कट लगाते हैं
एंड देयर इट फ्रॉम देयर इट ऊजेज आउट, वो ड्रग वहाँ से ऊज आउट होती है, बाहर आती है, इट गेट्स कलेक्टेड एंड वी कलेक्ट दैट पर्टिकुलर ड्रग। तो एक पर्टिकुलर पार्ट डिफाइन नहीं है, सो दैट विल बी गोइंग टू कम इन द कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। लाइक पपाया, जो मिल्क सिक्रीट होता है, लेटेक्स जिसको बोलते हैं, तो जो मिल्क सिक्रीशन है जिससे आपकी पपाइन आपके ऑब्टेन होंगे, वो आपका एक पर्टिकुलर पार्ट डिफाइन नहीं है। स्टेम तोड़िए आप, उसकी लीफ तोड़िए, वेरेवर जहां भी आप उसे ब्रेक करेंगे, मिल्की सेक्रेशन इज गोइंग टू कम आउट। सो दैट इज व्हाट, अ पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट बीन डिफाइंड, सो दैट इज गोइंग टू कम इन विच कैटेगरी, दैट इज गोइंग टू कम इन द कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट, अगर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज्ड क्या है, इट इज द कैटेगरी ऑफ ड्रग इन विच द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन इज नोन। दैट मीन्स अगर हमें पार्ट पता है कि किस पार्ट से ड्रग ऑब्टेन हो रही है, वो होगी ऑर्गेनाइज। एग्जाम्पल लीव्स, नीम, तुलसी, बार्क, सिंकोना, अर्जुना, फ्रूट, फेनल, बेल, फ्रूट है जो आपकी, सीड इज व्हाट, इस सब गोल जो है दैट इज सीड। तो ये हमें पता है कि किस पार्ट से मिल रहे हैं। After that, unorganized, these are the drugs in which the part of the plant from which the drug is obtained is not known. That means हमें नहीं पता कि किस पार्ट जो से हमें ड्रग ऑब्टेन हो रही है वो आपकी किस कैटेगरी में आएगी, अनऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल ड्राइड लेटेक्स, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ पपाया, सो पपाइन इज बीन ऑब्टेन फ्रॉम दैट। जूस जो है एलोय, जो एलोवेरा है उसका जूस, लाइक गम, अकेशिया, रेजिन, एसोफोटीडिया, हींग। सो ये क्या है आपकी, वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें एक पर्टिकुलर पार्ट डिफाइन नहीं है। इवन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग्स को किसके बेसिस पे, अपने सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे उनके कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप एक्सेट्रा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो बीन काउंटेड एज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आफ्टर दिस मूविंग टुवर्ड्स द अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन. If the drugs are being classified on the basis of chemical constituent present in drug, chemical constituent is the main thing which is responsible for the therapeutic activity of the drug. That means कि chemical constituents क्या है, ये ही वो चीज़ें हैं जो आपकी therapeutic activity, that means कि डिसाइड करती हैं कि ये ड्रग हमारी बॉडी में जा करके बॉडी के किस पार्ट पे क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी, किस बीमारी से हमें बचाएगी, क्या थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी। सो दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। देयरफॉर अगर हम ड्रग को कैटेगरी में डिवाइड करें, किसकी कैटेगरी में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। देयर आर द फ्यू एग्जांपल, लाइक यू कैन सी एल्कलॉइड्स, नेम ऑफ द ड्रग दतूरा, वसाका, विनका, लोबीलिया एक्सेट्रा। ग्लाइकोसाइड्स, केस्कारा, सेना, डिजिटालिस, टैनिन्स, कैटिक्यू, माइरोबैलिन, अशोका, वोलेटाइल ऑयल, क्लोव, यूकेलिप्टस, सिनेमॉन, lipids, castor oil, beeswax, arachis oil, etc. So these are what, alkaloid, glycoside, tannin, volatile oil, lipids, these all are the chemical constituent. ये सारे क्या हैं, chemical constituents हैं जो कि ड्रग्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, कि ये ड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी, हमें किस ट्रीटमेंट करेगी, किस बीमारी से रिलीफ करेगी, क्या एक्शन है। सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर रिस्पॉन्सिबल. So if we are classifying the drug on the basis of chemical constituent present in the drug is known as chemical classification. After this is taxonomical classification. Taxonomical classification is the classification on which the drugs are being classified on the basis of taxonomy of the plant, or we can say the natural relationship with the drugs are being holding with the nature. लाइक कि किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, किस फैमिली को ड्रग बिलोंग करती है, किस स्पीशीज को बिलोंग करती है। अगर हम इन बेसिस पे अब ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे तो वो ड्रग हमारा क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी ऑफ ड्रग. टेक्सोनॉमी मीन्स फाइलम, ऑर्डर, जनरा के बेसिस पे अगर हमने ड्रग्स को क्लासिफाई किया तो वो क्या कहलाएगा, आप देख सकते हैं इसमें मेंशन है, इन दिस द ड्रग्स आर बीन अरेंज अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमिकल स्टडी. कौन सी टेक्सोनॉमिकल स्टडी, जैसे फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज एक्सेट्रा. अगर इस बेसिस पे हमने ड्रग को क्लासिफाई किया तो दैट इज नोन एज द taxonomical classification. Here are few examples like phylum आप देख सकते हैं, एंजियोस्पर्म में ऑर्डर क्या है, रोजेल्स, रूटेट्स, रेटेस, फैमिली रोजेसी, रूटिएसी, लेग्यूमिनेसी, जेनरा बाल्सम ऑफ तोलू, बेल, लिकोराइस, थैलोफाइटा, जेलीडियल्स belongs to the family Jellidiaceae, a name of a drug is agar. After that Bryophyta, name is what, Filicales, family is Polypodiaceae and the name of the drug is male fern.
So these are the few examples for the taxonomical classification. So if we are classifying the drugs on the basis of natural relation of taxonomy which they are holding with the nature is known as the taxonomical classification, that is on the basis of phylum, order, genera, etc. is known as the taxonomical classification. After this is the pharmacological classification. Pharmacological classification means if we are classifying the drugs on the basis of pharmacological action which they are producing, जो pharmacological action या therapeutic action drugs produce करेंगी, that means कि क्या effect हमारी body पे किस चीज़ के treatment में use होंगी, तो अगर हम उस basis पे drugs को classify करते हैं, that will be known as pharmacological classification. Here are few examples of that, like you can see drugs acting on gastrointestinal tract, that means वो drugs जो हमारे कहाँ काम करेंगे, GIT पे work करेंगे, like bitter ड्रग्स क्या है, क्वेसिया, सिंकोना, कार्मिनेटिव, मेंथा, फेनल जो कि आप मोस्टली खाने के बाद इसमें लेते हैं, जो कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज को कंसिस्ट करेंगे, एमेटिक्स, ईपीएक, एमेटिक्स मींस कॉजिंग वॉमिटिंग जो आपको कॉज करेंगी, लेग्जेटिव, रुबाब जो आपको एलिमिनेशन और वेस्ट मटेरियल में काम करेंगे, पेप्टिक अल्सर, लिकोराइज एक्सेट्रा. सो दीज आर दी ड्रग्स जो कहाँ काम कर रहे हैं, जीआईटी ट्रैक्ट पे आपके काम करेंगे. सो हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन विच द ड्रग्स आर बीन प्रोड्यूसिंग, एंड ऑन दिस बेसिस इफ द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ द ड्रग्स बीन डन इज नोन एज द फार्माकोलॉजिकल classification. After this, drugs acting on respiratory system. This is the next example of this. Like drugs acting on respiratory system. Respiratory system, trachea, bronchi, bronchioles, आपके पूरा जो lungs etc. is the respiratory system of yours. इस respiratory system पे ये कैसे कौन से medicines work करेंगे? Like bronchodilators. Dilator is used for dilation or expanding we can say. तो ब्रोंकोडाइलेटर अगर हमारे जो ब्रोंकाइज हैं वहाँ पे कंजेशन आ चुका है, स्प्यूटम प्रोड्यूस, म्यूकस हमारे प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स वर्क कर सकते हैं. सो टी इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट. एंटीटसस, ज़्यादा स्प्यूटम प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर दैट ड्रग्स वी कैन यूज ओपीएम. एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेल आउट करना है, खांसी गले में कुछ फंसा हुआ लग रहा है, सो फॉर दोज लिकोराइज एक्सेट्रम, लिकोराइज इज व्हाट, मोलैठी, इन सबको हम यूज कर सकते हैं फॉर रिमूविंग दी स्पेलिंग आउट दीज ड्रग. Next is the drugs acting on the cardiovascular system. Cardiovascular system means drugs acting on the heart or the cardiac system पे जो हमारे drug work करेंगे. So here are few example like cardiotonics is digitalis, antihypertensive जो कि आपके blood pressure वगैरह को regulate करेंगे. So Rauvolfia is an example of antihypertensive drug. After this next example, drugs acting on central nervous system. आपके CNS पे जो drugs work कर रहे हैं, like you can see central analgesic जो pain को कम करेंगे, opium is there. CNS stimulant drug is coffee etc. Drugs acting as anti-cancer, that is Vinca. So in all these example you might have seen कि हमने क्या किया, हमने drugs को classify किया on the basis of action कि वो क्या action produce करेंगे, on the basis of pharmacological action which they are producing is known as pharmacological classification. After this, moving towards the another type of classification is chemotaxonomical classification. Chemotaxonomical classification is a combination of two things, chemo and taxonomical. Chemo means the chemical constituent and taxonomical means on the basis of taxonomy. Taxonomy is what, phylum, order, genera etc. and chemical constituent के अगर combine करेंगे हम तो और इस basis पे हम drugs की grouping करते हैं, if we are classifying the drugs on this basis, that will be counted as chemotaxonomical classification. You can see it has been written in the system classification, equal importance is given for taxonomical status and the chemical constituent present. That means हम taxonomy को भी कर रहे हैं और chemical constituent को भी count कर रहे हैं, so that will be known as chemotaxonomical classification. Examples of this is like tropane alkaloids जो हैं, they are mostly been present occurring in the most of the family of Solanaceae. Solanaceae family में ही सबसे ज़्यादा tropane alkaloids मिलते हैं. So here हमने क्या किया, the tropane alkaloids is what, a chemical constant, Solanaceae is what, taxonomy. तो taxonomical और chemical constant दोनों को combine किया and that will be known as chemotaxonomical classification. Like you can see volatile oils occur mostly in the family of Umbelliferae and Rutaceae family में. तो volatile oil is what, it is a chemical constituent and these are what, Rutaceae and Umbelliferae was, these are the family and this belongs to the taxonomical part. So this is the chemotaxonomical classification. So if the drugs are being classified on the basis of chemical constituent and taxonomy of the plant is known as chemotaxonomical classification. So this is all about the topic, that is classification of drugs, how the drugs are being classified. Thank you for today. Thank you so much.